students, this is the second video lecture of chapter 4, reflection of light. So the points we will discuss today are given here. So first of all, we will discuss about the object and the different type of images that are formed. Then formation of image in a plane mirror. So we have already discussed about what is a plane mirror. So how the images are formed here, we will discuss it today. Then the next is image of extended objects. So extended objects means finite objects. Okay? So first of all, we will see how the images are formed of a point object and then a finite object. Next is lateral inversion. So what is lateral inversion? We will discuss it. Then use of plane mirrors, and at last we will discuss about the spherical mirror. So let us start. Object. So how can you define an object? So anything which gives out light is known as object. Okay? So either the light can be of its own also or reflected light also, like a candle. So a candle can be said to be an object because it is giving us light. Okay? So here in this chapter our main motto is the formation of images. We have to study how the images are formed, and for the formation of images we need to take any object. Okay? And we will draw the ray diagrams also. So here in this chapter we will take objects as a candle, or you can take an arrow, or you can take a bulb. Okay? A bulb you can take, or your face you can take. Okay, so these are the objects. So objects are of two types: a point size object you can also take, and a finite size object also you can take. So for a point size object, whenever we will draw any ray diagram, then for point size object, okay, we will show it as a point. ठीक है? तो अगर हम एक पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी पॉइंट से या किसी डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. देन फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट, फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट को हमें एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है? तो फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट मींस अ पर्सन इज स्टैंडिंग, और यू कैन टेक अ बुक, okay, or a candle you can take. So these are the finite size object. ठीक है? जिसका साइज जो है वो फाइनाइट हो, इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो. ओके? And a point size means very small object. ठीक है? So this is the symbol for representing it. Now we will talk about the image form. Okay. So here we are studying how the images are formed of any object. ठीक है? तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो या तो वो रियल इमेज होगी और इट विल बी अ वर्चुअल इमेज. सो व्हाट इज अ रियल इमेज एंड व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज? ठीक है? सो अ रियल इमेज इज अ इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. Okay, and what is a virtual image? Which cannot be obtained on screen. Okay, screen means कोई भी पर्दा. ठीक है? तो किसी भी वॉल पे या किसी पर्दे पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को ऑब्टेन कर पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो इमेज कैसी है? रियल इमेज है. लेकिन अगर आप किसी की इमेज को आप नहीं शो कर पा रहे हैं किसी पर्दे पे या स्क्रीन पर, तब हम कहेंगे कि वो इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज. तो वर्चुअल इमेज का एक एग्जांपल है इमेज ऑफ योर फेस ऑन प्लेन मिरर या बाय प्लेन मिरर, फॉर्म बाय प्लेन मिरर. ठीक है? तो whenever you see your face, ठीक है, in a plane mirror you see your face, and what the image you see? The reflection of your face. Okay? And that type of image is known as virtual image. ठीक है? So that image you cannot show on a screen. ठीक है? आप अपनी फेस की जो इमेज देखते हो प्लेन मिरर में, उसे आप किसी भी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हो. सिर्फ आप उसको मिरर के अंदर ही देख सकते हो. ठीक है? और इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर. ठीक है ना? तो मिरर के पीछे बनती है वो इमेज, और उस इमेज
नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे हम लोग रिप्रेजेंट या शो कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ प्लेन मिरर। सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, व्हाट इज अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कैसा होता है, एक साइड इसका क्या होता है, पॉलिश होता है, और एक साइड जो होता है वो अनपॉलिश, ठीक है। तो दिस पार्ट इज सिल्वर कोटेड, okay, and this part is polished. Now we will place an object, ठीक है। तो first of all we will take a point size object and we will form the image of this object by a plane mirror. So let us denote this object at point O, ठीक है ना। तो ये point size object है, कहाँ पर है, O पर है। Now we will form image. So for the formation of image we need two rays of light, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकलती है, बट फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस we require only two light rays. So let us take two light rays. These are the two light rays emerging from a point size object, ठीक है ना। तो ये दो लाइट रेज हैं जो कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट O से निकलते हैं। नाउ दे विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है। सेकेंड लॉ के हिसाब से द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट रे हमारी कौन सी लाइट रे, इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हमारा हो गया नॉर्मल लाइन, ओके, एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ दिस लाइट रे विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड it will go like this. So this is the angle of reflection. So always I will be equal to R. So here in the second case also, this is the normal, this is the I. So let us denote it as I1 R1 and here I2 R2. तो जैसे यहाँ पर I1 जो है वो R1 के इक्वल था, वैसे यहाँ पर भी I2 जो है वो R2 के क्या होगी, इक्वल होगी, ओके। Okay. Now we will just extend it and it will be seen that the image is formed at point I, ठीक है। तो हमने इसे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड क्यों किया, बिकॉज in this side you can see the light rays are going apart, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इन लाइट रेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। सो वी कैन से दैट ये आगे जाकर कभी मिल नहीं सकती है, ठीक है ना, कभी ये मीट नहीं करेंगी। सो वी विल एक्सटेंड इट ऑन बिहाइंड द मिरर एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एज एट I, ठीक है। तो I क्या है, I is the image of object O and I is the virtual image of object O, ठीक है। तो यहाँ पर रियल इमेज नहीं बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। क्यों, कैसे हम कह सकते हैं, बिकॉज द लाइट रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। जब भी लाइट रेज जो है वो एक्चुअली मीट करेंगी, एक्चुअली जाकर कहीं पे मिलेंगी, तब हम कहेंगे कि जो इमेज हमारी बन रही है वो रियल इमेज बन रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो दो लाइट रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, वो आगे जाकर कहीं मिल नहीं सकती। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। सो वी विल एक्सटेंड द लाइट रेज बिहाइंड द मिरर एंड द लाइट रेज विल मीट या दे विल अपीयर टू मीट एट पॉइंट I and at point we will say that it is the virtual image of object O, ठीक है। तो जहां पर लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करेंगी वहां पर हम लाइट रेज को दूसरे साइड क्या करेंगे, एक्सटेंड करके, और ये देखेंगे क्या ये कहीं पर मिल सकती है। तो यस, दे आर मीटिंग एट I, ठीक है। दे अपीयर टू मीट एट I, ये एक्चुअली नहीं मीट कर रही है बल्कि दे अपीयर टू मीट एट I. सो वी विल से दैट I इज द वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई कैसे ऑब्जेक्ट की, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो हाउ कैन वी सी दिस इमेज,
इज आर आई, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट को की इमेज आई पर दिखाई देगी, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। अगर हमारा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ना होकर एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है तब हम कैसे बनाएंगे ये डायग्राम, ठीक है। अगेन वी विल टेक अ प्लेन मिरर, दिस इज अनपॉलिश्ड साइड, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए। तो यहाँ पर हमने एक फाइनाइट साइज को ऑब्जेक्ट लिया है, फाइनाइट साइज, और यहाँ पर जो मैंने लिखा है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। सो लेट अस सी, तो जैसे हमने पॉइंट ओ के लिए इमेज का फॉर्मेशन किया था या लाइक रे डायग्राम्स बनाए थे, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सो वी नीड टू लाइट रेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक टू लाइट रेज, एक लाइट रे हमने ऐसे ले ली, एक लाइट रे हमने ऐसे ले ली, ठीक है। सो एनी टू लाइट रेज यू कैन टेक आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन यू कैन टेक, ठीक है। सो इफ आई एम टेकिंग द लाइट रे व्हिच इज at 90 degree to the plane mirror, it will come back through the same path, ठीक है। अगर मैं एक ऐसी लाइट रे ले रही हूँ जो कि इस प्लेन मिरर में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो वो सेम पाथ से वापस आएगा। क्यों आएगा सेम पाथ से वापस? Why? Because the angle of incidence will be 0 degree, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल रे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल भी आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल भी हमारा यही है, इंसिडेंट रे भी हमारा यही है, तो इसलिए रिफ्लेक्टेड रे भी हमारा यही होगा, ठीक है। तो जैसे इंसिडेंट रे है उसी पाथ से रिफ्लेक्टेड रे भी वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0 डिग्री, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 0 डिग्री, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट सेकेंड रे, सेकेंड रे कुछ एंगल शो करेगा। यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, ठीक है, तो जितना I1 होगा उतना ही R1 होगा। सो reflected ray will be like this. Same thing we will do it for point B also. Again for B we are taking a light ray which is perpendicular to the plane mirror, ठीक है। तो अगर ये perpendicular है plane mirror के तो angle of incidence क्या हो जाएगा 0, so angle of reflection will also be 0, so same path से ये भी वापस आ जाएगा, ठीक है। Now see, next light ray we will take, ठीक है। Again it will follow the law of reflection, so whatever the I2 is, R2 will be equal to this I2, ठीक है। तो जितना I2 होगा उतना ही R2 होगा, so same here. Now what we will do, ठीक है। तो अगर हम लोग पॉइंट A की बात करें तो पॉइंट ए की बात करें तो ये एक इंसिडेंट रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ है, ये, ठीक है। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो ये दोनों क्या कभी मिल पाएंगे आगे जाकर? नहीं। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही वैसे वैसे इनका डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सो वी कैन नॉट से दैट वी विल मीट एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे दूसरी साइड एक्सटेंड करेंगे, so they are meeting at A dash. Suppose this point is A dash, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट B के लिए भी, पॉइंट B की जो रिफ्लेक्टेड रे है ये है और पॉइंट B की दूसरी रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये है। क्या ये एक्चुअली मीट कर पाएंगे? नहीं, नो, दे विल नॉट एक्चुअली मीट, ठीक है। सो दे विल अगेन एक्सटेंड इट, सो दे आर हियर टू मीट एट पॉइंट B डैश, ठीक है। तो हमने पॉइंट A के लिए भी उसकी इमेज बना ली A डैश पे, B के लिए भी इमेज बना ली B डैश पे। अब A और B के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन सबकी इमेज कहाँ बनेगी, A डैश एंड B डैश के बीच में बनेगी, यहाँ बनेगी। सो वी कैन से दैट द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB इज A डैश B डैश। ऑब्जेक्ट AB की जो इमेज है वो क्या है, A डैश B डैश, ओके। समझ में आ रहा है सबको? ओके।
So which type of image it is? It is also a virtual image. ठीक है, यहाँ पे भी virtual image बन रही है because it is a plane mirror. और plane mirror में देखेंगे आगे बढ़ के, ठीक है, आगे चल के हम और देखेंगे और एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं कि प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है, रियल इमेज नहीं फॉर्म होती है. ओके, व्हाई? बिकॉज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, क्योंकि हमें अगर इसे स्क्रीन पे दिखाना हो तो ये पॉसिबल नहीं है. Also, the light rays, the reflected rays are not actually meeting at any point. So we can say that the image formation is virtual. ठीक है? So move on to the next topic. Lateral inversion. ठीक है? तो lateral inversion पे जाने से पहले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि यहाँ पर जो हमने पढ़ा है प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन है, जो इमेज बन रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर हमें लिखने को मिले तो हम क्या लिख सकते हैं? इमेज कैसी है? फर्स्ट ऑफ ऑल which type of image it is? It is a virtual image, so you can say that image is virtual. ठीक है. दूसरी चीज, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही हमें इमेज मिल रही है. ठीक है, मीन्स इफ ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी हमें सीधी दिखाई पड़ रही है. ठीक है, जब सीधी इमेज दिखाई पड़ती है और सेम साइड पे मीन्स ऊपर के ही साइड पे दिखाई दे रही है तब हम कहेंगे कि इमेज जो है वो हमारी इरेक्ट है. ठीक है, सो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. सेकेंड पॉइंट, इमेज कहाँ बन रही है? इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर. सो यू कैन राइट इमेज is formed behind the mirror. Now third is at which point या where the image is formed. ठीक है ना, कहाँ पर कितनी डिस्टेंस पे इमेज बन रही है? तो इमेज is formed at the same distance as the object is from the mirror. ठीक है, image is formed at the same distance from the mirror as the object is from the mirror. ठीक है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर इमेज भी बनेगी. अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो उसकी इमेज भी यहाँ बनेगी. ठीक है, और दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो हमारी इमेज भी और दूर बनेगी. ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज formed in a plane mirror, formed by a plane mirror. One more characteristic is that we are going to discuss, that is lateral inversion. So what is lateral inversion? So first of all we will talk about inversion. Let us take a letter T. अगर हमने इसे इन्वर्ट या इन्वर्टेड फॉर्म में लिखें, ठीक है, ये कुछ इस तरह का आ सकता है. when the axis is horizontal. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली अगर हम इस P को इन्वर्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से इसकी इमेज बनेगी. ठीक है, अगेन if vertically we are, or not vertically, you can say laterally we are inverting it, so the image can be formed like this. So this is known as lateral inversion. ठीक है, अगर हमारी जो एक्सिस है वो क्या हो, वर्टिकल एक्सिस हो और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हम इसको क्या कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं, पलट रहे हैं. ठीक है, उल्टा कर रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे इट इज अ लेटरल इन्वर्जन. ठीक है, so this is the characteristic of image formed in a plane mirror कि जब भी इमेज हमारी बनती है वो laterally inverted होती है. ठीक है,
लेफ्ट हैंड ऊपर करो. सो इन द मिरर यू विल सी योर इमेज. ठीक है ना, आप अपनी इमेज देखोगे, आप अपना रिफ्लेक्शन देखोगे और इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका राइट हैंड ऊपर. ठीक है, तो आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहे हो, लेकिन आपके रिफ्लेक्शन में या आपकी इमेज में आपका राइट हैंड ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है. दैट मीन इट इज लेटरली इन्वर्टेड. आपकी इमेज जो है वो क्या हो रही है, लेटरली इन्वर्ट हो गई, पलट गई. वन मोर एग्जाम्पल, इफ यू राइट एनीथिंग like red is written, so the mirror image of red can be seen like this. ठीक है, तो ये बिल्कुल लेटरली पलट गया है, इन्वर्ट हो गया है. ठीक है, सो रेड की इमेज कुछ इस तरह से दिखाई देगी. तो जब भी प्लेन मिरर में, ठीक है, इमेज फॉर्म होती है तो वो लेटरली इन्वर्टेड होती है. सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर. Now we will discuss about uses of plane mirrors. ठीक है, तो uses of plane mirror you can write also. ठीक है ना, आप खुद से भी लिख सकते हो. तो first use you can say that it is used as a face mirror. ठीक है, कहाँ यूज करते हो face mirror में. ठीक है, हैंड में जो छोटे से मिरर्स होते हैं फेस देखने के लिए, उसे हम कहते हैं फेस मिरर. ठीक है, फॉर शेविंग एक्सेट्रा, और इन ड्रेसिंग टेबल्स यू यूज. ठीक है, इन बाथरूम यू यूज. सो दीज आर द uses of mirror in at homes. ठीक है, तो first use you can write at homes as face mirrors. ठीक है, second in shops and saloons. ठीक है, जो आप सलून्स में जाते हो या बार्बर की शॉप्स में जाते हो, वहां पर बड़े बड़े प्लेन मिरर्स लगे होते हैं. ठीक है, सो वहां भी इसका यूज होता है. एट वेरी इजी रोड्स, या एट टर्न्स ऑफ वेरी इजी रोड. ठीक है, जहां पर बहुत ट्रैफिक होता है. ठीक है, वहां पे जो टर्न्स, जो सडन टर्न्स होते हैं, ठीक है, वहां पर भी प्लेन मिरर्स लगाए जाते हैं ताकि अचानक से जब गाड़ी आप टर्न करें तो आपको अलग वहाँ सामने से जो गाड़ी आ रही है उस साइड से जो गाड़ी आ रही है वो आपको विजिबल हो जाए. ठीक है, सो एट वेरी बिजी रोड्स इट इज यूज. देन नेक्स्ट यूज इन पेरिस्कोप. तो पेरिस्कोप आपको पता है क्या होता है. तो पेरिस्कोप में भी जो हम लोग दो मिरर्स लगाते हैं 45 डिग्री एंगल पे. ठीक है, सो वो भी कैसा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है. तो दीज आर द सम यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स. नाउ our next topic is spherical mirrors. तो अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो प्लेन मिरर्स की बात कर रहे थे. So we have discussed so far about how the image is formed in plane mirrors. So next is spherical mirrors. ठीक है, तो spherical mirrors means sphere. ठीक है, this word has been taken from sphere. So what is a sphere, you know. ठीक है, तो spherical mirrors are the part of a hollow sphere. तो किसी hollow sphere का एक छोटा सा पार्ट अगर हम लेते हैं तो वो होता है spherical mirror. ठीक है, जैसे it is a hollow sphere and we are taking a small part of it. ठीक है, of which one of the sides are polished and the other side is unpolished. ठीक है, या सिल्वर कोटेड. तो एक साइड इसका सिल्वर कोटेड है और एक साइड क्या है, पॉलिश सरफेस. ठीक है, और अंदर का साइड यहाँ पर सिल्वर कोटेड है एंड बाहर का साइड यहाँ पे क्या है, पॉलिश. ठीक है, तो इट कैन बी टेकन आइदर ऑफ. ठीक है ना, दोनों में से कैसा भी हम बना सकते हैं स्फेरिकल मिरर. टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर बना सकते हैं जिसमें एक पार्ट जो बल्जिंग वाला पार्ट है वो सिल्वर कोटेड है, अंदर वाला पार्ट है वो क्या है, पॉलिश है. और जो बल्जिंग वाला पार्ट है वो पॉलिश है और अंदर वाला पार्ट है वो सिल्वर कोटेड है. ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स, आइदर ऑफ दिस टाइप और आइदर ऑफ दिस टाइप, एंड द नेम्स ऑफ दीज टू टाइप्स आर कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव. ठीक है,
तो स्फेरिकल मिरर के हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स अगर ले लें, ठीक है, इस तरह का पार्ट इसमें से कट कर लें तो ये क्या बन जाता है, कॉनकेव मिरर बन जाता है। एंड इस तरह का पार्ट अगर हम लोग कट कर लें तो ये क्या बन जा रहा है, कॉन्वेक्स मिरर बन जा रहा है, ठीक है। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज और टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स व्हिच वी विल डिस्कस जस्ट नाउ। सो वी आर सीइंग स्फेरिकल मिरर जो है दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो हाउ द कॉनकेव मिरर फॉर्म और looks like, कॉनकेव मिरर में जो बल्जिंग वाला पार्ट है वो क्या है, सिल्वर कोटेड होता है एंड इनसाइड पार्ट इज पॉलिश सरफेस, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर एंड हियर बल्जिंग पार्ट इज पॉलिश एंड इनसाइड पार्ट इज व्हाट, सिल्वर कोटेड, ठीक है। नाउ सी, this is the hollow sphere from both the mirrors are being cut, ठीक है ना। ये hollow sphere है जहां से हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर को कट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ जैसे आप स्फीयर का सेंटर पढ़ते हो, ठीक है ना, this sphere also has a center, let us mark this as C, ठीक है ना। तो जो स्फीयर का सेंटर होता है उसे हम C से मार्क करते हैं और उस C को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। व्हाट इज C कॉल्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज दिस कर्वेचर, कर्वेचर क्या है, ठीक है। ये जो एक छोटा सा पार्ट हम ले रहे हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज कर्वेचर, ठीक है। इस कर्वेचर का जो सेंटर है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। नाउ द स्फीयर हैज सम रेडियस आल्सो। व्हाट इज द रेडियस, रेडियस किसे कहते हैं हम, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस या आउटर पार्ट, ठीक है। उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस। सो इस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड व्हाट इट इज, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड दिस सर्कमफ्रेंस एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पोल पी, ठीक है। अगर हम कोई मिरर कट कर रहे हैं, ठीक है, तो मिरर का जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं पोल, ठीक है। स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं पोल एंड इट इज डिनोटेड बाय P, ठीक है। अब एक ऐसी लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस एक्सिस इज नोन एज, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से ही पास कर रही है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ नहीं बन सकता, यहाँ नहीं बन सकता, नो, ठीक है। ऐसी लाइन हमें बनानी है जो कि C और P दोनों से ही पास करे, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर पोल, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फोकस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। तो अगर हम लोग इस साइड से मिरर कट कर रहे हैं और ये पार्ट जो हमारा क्या है, पॉलिश्ड है और ये क्या है, सिल्वर कोटेड है, तो इस तरह के इमेज मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कहाँ है, यहाँ है, मिरर के सामने। ये हमारा मिरर है, पॉलिश सरफेस, और मिरर के सामने हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को जिस तरह से हम कट करेंगे, पॉलिश सरफेस क्या है, इधर वाला पार्ट है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, पीछे है। तो कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो रियर नहीं होता है, ठीक है ना, वो सामने नहीं होता है बल्कि वो कहाँ होता है, पीछे होता है, बिहाइंड होता है, ठीक है। इसका भी एक पोल होगा जिसे हम P से डिनोट करेंगे। ये लाइन जो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है।
अगर हम लोग अलग अलग बात करें दोनों की, तो कॉनकेव मिरर के केस में जब भी हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो सी हमेशा क्या बनाएंगे, आगे बनाएंगे। ये रियल सी है, रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एक्चुअली में है, ठीक है, हम इसे शो कर सकते हैं। और अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स का सी क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स का जो सी होता है वो रियल सी नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फोकस। तो व्हाट इज द फोकस? So focus is the point where the light rays parallel to principal axis after reflection actually meet, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो लाइट रे जो कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली वहां पर जाकर मिल जाए, उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। लाइक these light rays are parallel to principal axis and after reflection they actually meet at a point and this point is known as focus. तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो मिलना को या एक जगह इकट्ठे होने को हम कन्वर्ज भी बोलते हैं, इसे हम कहते हैं कन्वर्ज हो जाना, ठीक है। तो द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो एक जगह जाकर कन्वर्ज हो जा रही है और जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होती है उसे हम कहते हैं फोकस, ठीक है। तो हर एक मिरर का फोकस अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप एक कॉनकेव मिरर ले रहे हो, दूसरे साइज का कॉनकेव मिरर ले रहे हो, कुछ बड़ा ले रहे हो, कोई छोटा ले रहे हो, सभी कॉनकेव मिरर का जो फोकस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। हम कैसे पता करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे? बाय लेटिंग द लाइट रेज, ठीक है, पैरेलल लाइट रेज को कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट कराएंगे और जिस पॉइंट पर वो आकर कन्वर्ज हो जाएगी उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, फोकस है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट फोकल लेंथ, तो F और P के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये F P से कितने डिस्टेंस पे है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। अब ये बात हम कर रहे थे कॉनकेव मिरर। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो यहाँ पर इसका फोकस कैसा होगा, ठीक है। तो अगर हम पैरेलल लाइट रेज कॉनकेव मिरर के पास लाएं, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या होगा, विल दे कन्वर्ज? नो, दे विल डाइवर्ज। तो कॉनकेव मिरर में द लाइट रेज कन्वर्ज टू अ पॉइंट, बट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द लाइट रेज आर डाइवर्जिंग। डाइवर्ज का मतलब होता है और ज्यादा फैल जाना, कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह मिल जाना और डाइवर्ज का मतलब होता है और फैल जाना, ठीक है। तो यहाँ जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है वो कन्वर्ज नहीं होंगी बल्कि क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। कब डाइवर्ज होंगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन, बट दे अपीयर टू बी इमर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये फैल तो जा रही है, डाइवर्ज तो हो जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सारी जो रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट से निकलती हुई आ रही है। अगर ये मिरर नहीं होता, ठीक है, और तब हम उन रेज को देखते तो ये ऐसा लगता है कि ये लाइट रेज कहाँ से निकल रही है, इस पॉइंट से निकल रही है एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। So what is the focus of convex mirror? A point where the light rays parallel to principal axis after reflection, ठीक है, diverge and appear to be emerging at F, ठीक है, from F, ठीक है ना। तो after reflection ये लाइट रेस कैसी लग रही है कि ये F से होती हुई निकल रही है, so इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे F पॉइंट या फोकस पॉइंट, ठीक है। या in other words you can say the light rays appear to
रिफ्लेक्शन, क्या ये लाइट रेज कहीं मिल सकती है? नहीं मिल सकती। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे इनके बीच का भी डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर हम बिहाइंड द मिरर इसको एक्सटेंड करके और इन्हें मिलाएं तो एक पॉइंट पे जाके सब मिलेंगी और वो पॉइंट कहलाता है फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो फोकस है कॉन्वेक्स मिरर का वो रियल फोकस नहीं होता है। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर की बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रियल होता है एंड focus is also real, but in the case of convex mirror, center of curvature and focus are not real, and where they are situated? Behind the mirror. कहाँ पर situated है? Behind the mirror. Now similarly यहाँ पर भी अगर हम लोग small f की बात करें, focal length की बात करें तो focal length is the distance between P and F. तो P and F के बीच का जो distance होता है उसे हम क्या कहते हैं? focal length कहते हैं। तो ये हो जाएगा focal length of convex mirror. ठीक है, one more thing I would like to say that relation between f, small f and r. ठीक है, तो कैपिटल R क्या है? मैंने बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एंड व्हाट इज स्मॉल f? दिस इज द फोकल लेंथ। ठीक है, तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन f एंड r. व्हाट इज इट? f इज r/2। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो है वो हमेशा ही क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। मीन्स क्या, इन अदर वर्ड्स यू कैन से ये फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ डिस्टेंस पे है। ठीक है, या एफ पॉइंट जो है वो सी और पी के डिस्टेंस के हाफ मिड पॉइंट पे है। ठीक है, अगर हम लोग सी और पी का मिड पॉइंट निकालें तो वो वहां पे क्या सिचुएटेड होगा? फोकस। तो फोकस हमेशा क्या है? सी और पी के मिड पॉइंट पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, या आप कह सकते हो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दिस वाज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो दिस वाज सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 4 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So we will further continue in the next video. Thank you.